नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुख खबरों का करेंगे। फरीदाबाद से अहम खबर है। ड्यूटी से घर लौट रहे युवक की मौत हुई है। मृतक की पहचान 30 वर्षीय सचिन के रूप में हुई है। ट्रक की टक्कर से ये बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। मृतक की पहचान 30 वर्षीय सचिन के रूप में हुई है। ट्रक की टक्कर से सड़क हादसा हुआ है। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद से अहम खबर। ड्यूटी के दौरान ड्यूटी से घर लौट रहे युवक की हादसे में मौत हुई है। मृतक की पहचान 30 वर्षीय सचिन के रूप में हुई है। ट्रक की टक्कर से यह हादसा हुआ है। दुखद खबर, सचिन की 30 वर्षीय सचिन की मौत हुई है। सूचना ईआरवी से फोन आया कि एक्सीडेंट हो गया है अटल पार्क है। ट्रक का और बाइक है, इस पे बाइक थी मृतक पे और वो ट्रक से होया है। मृतक का क्या नाम है? मृतक का नाम है जी सचिन कुमार। उम्र करीब 32 साल 33 साल हो। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ? ये समयपुर चुंगी के पास अटल पार्क के सामने। हमको पहले एक बार फोन किया, कहीं ठीक है हम आ रहे हैं। उसके बाद में फिर कहीं ठीक है बाइक चला रहे हैं, हम कहीं ठीक है, फिर अपना काम करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद फोन कियो कि ज्यादा सीरियस है, तो हम भागे हैं जल्दी से, कुछ भी ना साला लेके जल्दी भागे। फिर थोड़ी देर बाद कि ज्यादा सीरियस है। और इस बीच सीधा आपको लिए चलते हैं लोकसभा की कार्रवाई में। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। between us and the Chinese and the Pakistanis. There is a very important matter that is quoted in this article that I have authenticated, which speaks about the reaction of the Prime Minister. And I'm once again, please, please. Once again. Sir. Once again. Sir, I'm once again requesting you to please restrict yourself to the speech of the Honorable President. I'm requesting OP to please restrict himself to the speech of the Honorable President. Let us not mislead the House. Let us clear the confusion. Today I had requested both Venugopal ji and Gaurav ji also. We are patiently waiting to listen to the Honorable Leader of the Opposition. The matter we referred to just now, yesterday the chair has given a ruling. The paper on which he has authenticated, that is tabled in the House. But what I'm saying is, when a ruling has already been given, on which he referred yesterday, he can't be quoting same matter again in the text of making a reference indirectly. He cannot differ on the same matter. Please continue with your speech. We are waiting. Please avoid referring to a matter which has been settled. Sir, Honorable Parliamentary Affairs Minister is trying to mislead the House. Of course, he called us, me and Gaurav Gogoi. Sir, please. Sir, when Honorable LOP is standing, sir, when Honorable LOP is standing, I want to give a clarification. when Honorable LOP is standing, Allow me to give a clarification, sir. no, Please allow me. no, sir, when Honorable LOP is standing, you are speaking. 1 minute. Please permit him to speak. Please permit him to speak. Parliamentary Affairs Minister took my name. No, 1 minute clarification. No, sir. Please permit him to speak. What He's is already this, sir? started. Sir, He sir, what started is his this? speech, sir. Let him speak. Our speaker's ruling yesterday. Don't quote the book. Don't mercy. This was the only ruling of the speaker. No, sir. Please listen to me. He started his speech. So Please let him continue. He started his I need speech. a clarification because Parliament Minister quoted me. Honorable He took my name. Sir, what is, see, you want him to speak or not? This is only for this house is only for. This is not for us. What is this?
This house is only for them. One second. Mr. Venugopal, kindly be seated once again. No, listen. No, please listen. What did you say just now? What is this yar? What is this yar? This is Parliament, Lok Sabha. You can't address the chair. You cannot address the chair with yar. What is this yar? No, you cannot address the chair by saying yar. No. Please take back your word. You can't say chair yar. No. You cannot. No. Honorable LOP standing on his feet to speak. You are allowing him to speak. माननीय राहुल गांधी जी आप No. Please allow him to speak. Please allow him to speak. Please allow him to speak. No. चेयरमैन साहब यार कह दिया हो गया कोई आफत आ गई है No, not correct. No. There is a quorum. Not correct. That is not true. There should be a quorum of the house. There should be respect to the chair. You know how to behave. No, not correct. Rahul ji, please speak. Please continue to speak. Speaker, sir, if the issue is about me quoting a magazine, which I have authenticated, I am happy not to quote it directly. No problem. But I have to go to speak about it. Yeah. Honorable LOP, You have, Shri Speaker, sir. Rahul Gandhi ji, Chairman, please sir. Chairman, listen. You have been given permission to speak on the Honorable President's speech. I am speaking. What are you telling? What are you telling LOP? Speaker, sir. And yesterday, Speaker, sir. and One yesterday, second. Speaker, sir. permit Sir, him to Speaker, speak. sir. What is this? Sir, Speaker, 1 second. Sir, yesterday, Honorable Speaker, Speaker has sir, it given is not a ruling. permission that I am being given, Speaker, sir. I am not being given a permission. What is the permission? I am the leader of the opposition of the country. You are not giving me permission. It is my right. Rule 349, under Rule 349. No. Honorable Speaker has given a ruling under Rule 349. Under Rule 349, Honorable Speaker has already given. And if you don't want LO to speak, I'll have to give you opportunity to others to speak. If you don't want LO to speak, I will have to give opportunity to others to speak. No, please listen. I am giving opportunity. ये नहीं चला. Honorable LOP will speak. He can speak. He doesn't require your support. He will speak. 1 second. Chairman, sir. Speaker, sir. I am... Please. 1 second, sir. Please. Chairman, sir, I am objecting to the word permission. That is not the correct word because I am not given permission by anyone. I am leader of opposition. So I'm just objecting to that. I have called your name. Everybody speaks with the permission of the chair. Please. Nobody Because, sir, above the chair. There was an altercation. Everybody speaks on the permission of the chair. Please speak, sir. 1 second. 1 second, sir. Yes, please speak. Speaker, sir, our President's address was about the path that India has to chart, the direction in which India has to move. Today, on the world stage, the main issue in international affairs is the conflict between China and the United States. This is central
this is central to our President's address. This is, as you have seen, to our budget. And all I am saying is I want to make a statement about what happened between China and India and how our Prime Minister reacted to it. Why am I being stopped? Sir, in Ladakh, in eastern Ladakh, there was a conflict. Ours were killed. I requested Honorable LOP to speak repeatedly. I made it to speak on the speech of the Honorable President. Now, माननीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी, माननीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी, माननीय श्री नरेश उत्तम। Sir, I made repeated request. I made repeated request to on the speech of the Honorable President. माननीय नरेश उत्तम पटेल जी, आप बोलना नहीं चाहते हैं, आप बोलना नहीं चाहते हैं। माननीय श्री शताब्दी राय, माननीय श्रीमती शताब्दी राय, माननीय श्रीमती शताब्दी राय। माननीय श्री डीएम आनंद, माननीय श्री डीएम खातिर आनंद, माननीय श्री जीएम हरीश योगी जी। Honorable Chairman, sir, I rise today on behalf of my party, Telugu Desam, to extend our support to the gracious delivery by the Honorable President of India. The address presents a confident national roadmap anchored in reform, guided by inclusion, directed towards the long-term objective of building a strong, aligned, and globally competitive India. The vision of Vikasit Bharat 2047 reflects a fundamental shift in government philosophy from managing short-term outcomes to shaping us long-term economic strength, institutional capacity and strategies in global economy. With India's potential growth rate approaching 7%, driven by sustained and historical public investment, we are witnessing the emergence of a new upgrade trajectory. Our national कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित किया गया है। आपको बता दें कि लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। राहुल गांधी ने फिर चीन का मुद्दा उठाया, जिसके बाद हंगामेदार बहस के बीच सदन की कार्रवाई रोकी गई है। तो विपक्ष के सारे सांसदों ने बोलने से मना कर दिया। फिलहाल 3 बजे तक के लिए सदन को स्थगित किया गया है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से चीन का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया और हंगामे के बाद अब हाउस जो है एडजॉर्न हो गई है 3 बजे तक। तो हाउस एडजॉर्न हुई है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से चीन का मुद्दा उठाया। आपको बता दें, बजट पर संसद में धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान विपक्ष को बोलने की जब बारी आई तो राहुल गांधी ने चीन का मुद्दा उठाया और राहुल गांधी के समर्थन में विपक्ष जो है वो लामबंद नजर आ रहा है। और ऐसे में राहुल गांधी चीन के मुद्दे पर लगातार बोलते नजर आ रहे हैं, वो उसी पर अड़े हुए हैं, जबकि बजट पर
कुछ भी चर्चा फिलहाल इस पर विपक्ष की तरफ से फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन अब चूंकि चीन के मुद्दे पर लगातार हंगामा होता नजर आ रहा है, इसलिए 3 बजे तक के लिए हाउस एडजॉर्न कर दी गई है। तो राहुल गांधी के समर्थन में विपक्ष संसद में एकजुट नजर आ रहा है और इस बीच भारी हंगामा सदन में देखने को मिला है। फिलहाल 3 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई रोक दी गई। अब रुक करेंगे खबरों का। रायबरेली से अहम खबर है। कृषि विभाग के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाई गई है। डीएम हर्षिता माथुर ने दिखाई है हरी झंडी। विकासखंडों में जाकर किसानों को किया जाएगा जागरूक। फार्मर रजिस्ट्री कराने पर रहेगा विशेष जोर। योजनाओं का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्री अनिवार्य। किसानों तक सीधी जानकारी पहुंचाने की पहल। शहर के कलेक्ट्रेट परिसर में कार्यक्रम का आयोजन। फार्मर रजिस्ट्री कराने पर रहेगा विशेष जोर। योजनाओं का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्री अनिवार्य। किसानों तक सीधी जानकारी पहुंचाने की पहल। शहर के कलेक्ट्रेट परिसर में कार्यक्रम का आयोजन। डीएम हर्षिता माथुर ने दिखाई हरी झंडी। प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाई है। आपको बता दें कि विकास खंडों में जाकर किसानों को इसके माध्यम से जागरूक किया जाएगा। फार्मर रजिस्ट्री कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। फार्मर रजिस्ट्री कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। देखिए, हमारे जनपद में जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जो पात्र लाभार्थी हैं, उन सभी को लाभान्वित किया जाना था। अभी हमारे 5,40,000 से कुछ ज़्यादा लाभार्थी जो थे, उनमें सिर्फ 1,67,000 के आसपास लाभार्थी और शेष हैं। और इन्हीं सभी लोगों के लिए प्रचार प्रसार का माध्यम बनाते हुए 18 विकास खंडों में या 18 प्रचार प्रसार वाहनों को भेजा गया। और अगली खबर हमीरपुर से है। मौसम ने अचानक करवट बदली है। बारिश ने फरवरी के महीने में बढ़ाई ठंड। जनपद में शीतलहर का बढ़ा प्रकोप। सुबह तेज हवाओं के साथ शुरू हुई झमाझम बारिश। आईएमडी ने यूपी के कई जिलों में जारी किया था बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने यूपी के कई शहरों में बारिश का अलर्ट जारी किया। जनपद में शीतलहर देखा जा रहा है। सुबह तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हुई। बारिश ने फरवरी के महीने में ठंड बढ़ाई है। जनपद में शीतलहर का प्रकोप बढ़ा। सुबह से तेज हवाओं के साथ रिमझिम बारिश शुरू हुई। आईएमडी ने यूपी के कई जिलों में जारी किया बारिश का अलर्ट। हमीरपुर से अहम खबर। मौसम ने अचानक करवट बदली। रिमझिम बारिश के साथ मौसम ने करवट बदली है। बारिश ने फरवरी के महीने में ठंड बढ़ाई। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कासगंज से अहम खबर। अवैध हथियार सहित युवक का फोटो वायरल फोटो के आधार पर युवक की तलाश शुरू जाती है। आपको बता दें, अजीत बताया जा रहा है फोटो में दिख रहे युवक का नाम। बेहटा गांव में रिश्तेदारी में रहता है आरोपी युवक। सावर कोतवाली का है यह पूरा मामला। अजीत बताया जा रहा है, ये फोटो में दिख रहा युवक का नाम। बेहटा गांव में रिश्तेदारी में रहता है आरोपी युवक। वायरल फोटो के आधार पर युवक की तलाश शुरू की गई है। तो फिलहाल अजीत बताया जा रहा है, फोटो में दिख रहे युवक का नाम। बेहटा गांव में रिश्तेदारी में रहता है आरोपी युवक।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अहम खबर है। प्रतियोगी छात्र का शव फंदे से लटका मिला है। परिजनों ने मौत को संदिग्ध बताते हुए जांच की मांग की है। मौके से एक सुसाइड नोट व संदिग्ध वस्तुएं मिली। जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिठूर थाना क्षेत्र के होरा बांगर नई बस्ती का यह पूरा मामला। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से अहम खबर। सीएम धामी ने श्रमिक प्रशिक्षण पोर्टल का शुभारंभ किया है। श्रमिकों का कौशल प्रशिक्षण पूरी तरह से ऑनलाइन और पारदर्शी होगा। प्रशिक्षण प्रदाता और मूल्यांकनकर्ता डिजिटल प्रक्रिया से चुने जाएंगे। उपस्थिति और मूल्यांकन भी ऑनलाइन माध्यम से होंगे। प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन जैसे कौशलों पर विशेष फोकस। प्रशिक्षण को रोजगार से जोड़ने पर सरकार का जोर। पोर्टल से गुणवत्ता, जवाबदेही और आपको बता दें डुप्लीकेसी पर रोक लगेगी। प्रशिक्षण को रोजगार से जोड़ने पर सरकार का जोर। पोर्टल से गुणवत्ता, जवाबदेही और डुप्लीकेसी पर रोक लगेगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से अहम खबर। उत्तराखंड में शिक्षा को समग्र और बाल केंद्रित बनाने की पहल। आपको बता दें SCERT ने पंचकोश विकास सिद्धांत शामिल करने की अनुशंसा की है। 5वीं कक्षा तक पंचकोश विकास सिद्धांत शामिल करने की अनुशंसा की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप तैयार किया गया है प्रस्ताव। 3 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष फोकस इसके तहत रहेगा। रटंत विद्या के बजाय अनुभवात्मक और खेल आधारित सीखने पर जोर दिया जाएगा। नए पाठ्यक्रम से बच्चों पर शैक्षणिक दबाव कम होने की उम्मीद है। शिक्षा को आनंददायक और जीवन उपयोगी बनाने का लक्ष्य। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से अहम खबर है। हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन से निपटने पर मंथन। भूस्खलन जोखिम को लेकर देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला 5 दिवसीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ। देश विदेश के वैज्ञानिक और भूस्खलन विशेषज्ञ कार्यशाला में हुए शामिल। ढलान स्थिरता, सॉइल नेलिंग और जल निकासी पर इस प्रशिक्षण में विशेष जोर दिया गया। उपग्रह आधारित तकनीकों से जोखिम मानचित्रण पर जोर। आपदा सक्षम और टिकाऊ अवसंरचना विकास पर मंथन। कार्यशाला से हिमालयी क्षेत्रों में सुरक्षित विकास को बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।